Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to our next video on mobile application development, and in this video we are going to talk about how we can use dialogues in Android applications and how different fragments can communicate with each other. So before jumping into any other details, let's have a look at the application. So we are actually targeting to extend the functionality with this date picker. So what we need to do is whenever we click on this button, we want the user to select a particular date using this date picker widget. This date picker widget is actually being displayed on a fragment which is called a dialog fragment. So we'll be creating a dialog fragment and then hosting a date picker widget in this fragment. And definitely that dialog fragment is hosted in this activity. So as soon as the user changes the date, that change is reflected on the button and also set on the crime object. So let's have a look at the code now. Resuming from the same application, I'm going to start by creating a dialog fragment class. So for creating a dialog fragment class, I can add a new Java class and name my dialog fragment class as date picker fragment. So I'm going to add this class and extend this from the dialog fragment. So this is going to make it as a dialog fragment class. Additionally, I'm going to override a method available in this list. So I'm going to look for onCreateDialog method. In this onCreateDialog method, I can just comment this call to the super and simply create an alert dialog. So I'm going to say new alert dialog dot builder, and using this builder, let's just import the class, and using this builder I'm going to build this dialog. So I'm going to set the title of the dialog, and then I'm going to set the positive button of the dialog. And then finally I can make the call to create. So to set the title of the dialog, I'm going to add a resource string in my strings.xml file. So I can add another resource string and give it any name. Let's suppose date picker title. And I can give or write a string which I want to show to the user. So ये जो date of crime मैंने यहाँ पे enter किया है, that is going to be loaded from here as the title. So I'm going to load it from the resources. It is in the string resources dot date picker title. And similarly, I'm going to use the Android resources, and these are the Android string resources, which will be giving me the title for my OK button. I don't have to write the semicolon here, so yes, I also need to give the listener, which is null at this moment, and also this builder needs a context. So मैं इसको अपने fragment की activity जो है वो return कर देता हूँ. यहाँ पर अगर फ़िलहाल हम चाहें तो एक blank listener जो है वो provide कर सकते हैं, और ये वो listener होगा जो कि इसके on click के ऊपर काम करेगा. So I'm going to create an unnamed object of on click listener. इनफैक्ट यहाँ पे जो ऑन क्लिक लिस्नर मुझे यूज़ करना है, दैट इज़ द डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, और उसके ऑन क्लिक के ऊपर मुझे जो डेट है उसको सेलेक्ट करना है और रिटर्न करना है, जो कि फंक्शनैलिटी है जो हम बाद में ऐड करेंगे. अभी तक हमने जो अलर्ट डायलॉग बनाया है दैट इज़ एम्प्टी. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हम लोग यहाँ पर एक रिसोर्स फाइल ऐड करेंगे. सो लेट्स ऐड अ रिसोर्स फाइल इन द लेआउट्स एंड नेम दैट रिसोर्स फाइल एज dialog_date, और इस लेआउट के अंदर जो रूट के ऊपर मैं एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द कंस्ट्रेंट लेआउट, बल्कि दैट इज़ गोइंग टू बी द डेट पिकर विजेट. So I can remove this constraint layout and replace it with the date picker. So this date picker is going to have a width and height, जिसको कि मैं change करूँगा wrap content के अंदर. So width should be wrapping the content, और इस तरह से height भी जो wrap content करेगी. Additionally मैं इसको एक ID assign कर रहा हूँ.
so I have to give an ID just to recognize it later. So the ID could be dialog date picker, और ये ID है जिसको मैं later on जाके इस्तेमाल करूँगा from this point. So what we need to do is, अभी ये जो मैंने अलर्ट डायलॉग बनाया that is blank, ये खाली है. मुझे इस डायलॉग के अंदर अपना डेट पिकर जो लेआउट है उसको लोड करना है. सो मैं एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, व्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लेटर ऑन आई विल हैव टू सेट द व्यू फॉर दिस डायलॉग. और वो करने के लिए जहाँ पे मैंने टाइटल सेट किया है, लेट्स सपोज यहीं पर मैं सेट व्यू का मेथड भी कॉल करता हूँ. सो आई हैव टू से डॉट सेट व्यू, और इसमें मैं एक व्यू ऑब्जेक्ट पास करूँगा. सॉरी, आई डोंट हैव टू राइट द सेमीकोलन. अभी जो व्यू है दैट व्यू नीड्स टू बी इन्फ्लेटेड फ्रॉम द लेआउट. ठीक है, सो हम लोग लेआउट इन्फ्लेटर क्लास को यूज़ करेंगे, उसका फ्रॉम का मेथड है, और उसमें हम लोग अपना लेआउट जो है वो पास करेंगे. सो विल बी यूजिंग द गेट एक्टिविटी मेथड टू गेट अर एक्टिविटी, और इसके बाद इसके ऊपर मैं अपना इन्फ्लेट का मेथड कॉल करूँगा जिसमें आई हैव टू पास द रिसोर्स. सो आई कैन पास द रिसोर्स एज लेआउट डॉट डायलॉग अंडरस्कोर डेट, और दूसरी चीज़ जो है वो मुझे उसका व्यू ग्रुप पास करना है. सो ये व्यू ग्रुप जो है ये रूट एलिमेंट के तौर पे सर्व करता है. सो फ़िलहाल आई डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी रूट एलिमेंट हेयर. मैं इस व्यू क्लास को इंक्लूड करा देता हूँ, इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड दैट्स इट. सो अब जब भी हम इस फ्रेगमेंट को, इसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो हमें एक अलर्ट डायलॉग मिलेगा जिसके अंदर हमें अपना डेट पिकर विजेट जो है वो नज़र आएगा. अच्छा, इस फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें डेट पिकर को एक डेट भी पास करनी होगी जो कि इनिशियली उसके ऊपर सेट होगी. और वो डेट पास करने के लिए हम लोग, अगर आप लोगों को याद हो, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर क्राइम फ्रेगमेंट के अंदर न्यू इंस्टेंस का मेथड कॉल करते थे जस्ट टू मेक इट इंडिपेंडेंट एंड जस्ट टू पास द फ्रेगमेंट आर्ग्यूमेंट्स टू दिस फ्रेगमेंट, हम लोग ये न्यू इंस्टेंस वाला जो तरीका है इसको इस्तेमाल करते हैं. तो हम यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से जो न्यू इंस्टेंस का मेथड है उसको उसके लेआउट को या उसके टेम्पलेट को ऐड कर देते हैं, और फिर हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेते हैं. सो इस न्यू इंस्टेंस के मेथड को हमें डेट पास करनी होगी व्हेनेवर समवन नीड्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट फ्रेगमेंट. तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो हमें java.util.date टाइप का ऑब्जेक्ट जब रिटर्न करे. और जैसे ही हमें वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हम इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर सेट बल्कि पुट सीरियलाइजेबल कर देंगे, और वो सीरियलाइजेबल विल बी इन द फॉर्म ऑफ द डेट. सो वी नीड टू सेट द की. सो लेट्स मेक अ प्राइवेट static, in fact it should be final as well, string type variable as a data member. So date underscore key, or let's suppose key underscore date, और उसको हम एक अपना यूनिक सा नाम भी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो फ़िलहाल मैं इसको डेट कर देता हूँ, और प्रॉब्ली ये की नहीं है, ये एक आर्ग्यूमेंट है, तो मैं इसको आर्ग्यूमेंट अंडरस्कोर डेट भी कर सकता हूँ. सो इट्स प्योरली अप टू योर चॉइस. लेकिन आर्ग्यूमेंट डेट, एंड इसको जो हमने इसमें डेटा पुट करना है दैट इज़ दिस डेट. सो हमें जब भी कोई ये फ्रेगमेंट बनाने की रिक्वेस्ट करेगा तो साथ में हमें डेट पास करेगा. वो डेट हम आर्ग्यूमेंट्स के अंदर रख देंगे. उसके बाद हम अपना फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वी आर गोइंग टू सेट द आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न द फ्रेगमेंट. सो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा कॉलर को, और उसके दिए गए जो डेटा है उसको हम अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी सेट कर देंगे या रख देंगे. अच्छा, स्टिल आई एम गेटिंग एन एरर इन दिस कोड. we can simply return this newly created dialog. So instead of returning the super call, हम लोग खुद अपना एक डायलॉग बनाएंगे और उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे. So ये जो हमारी डेट पिकर फ्रेगमेंट क्लास है दैट्स अप एंड रेडी. सिर्फ इसमें एक ऑन क्लिक का मेथड है जो कि हमें वो राइट करना है, और इनफैक्ट ऑन क्लिक होने के ऊपर हमने करना क्या है, क्लिक होने के ऊपर इस फ्रेगमेंट को जो भी इनफैक्ट जहाँ से भी हम इसको डिस्प्ले कराएंगे या जहाँ पे भी होस्ट कर रहे होंगे, उस एक्टिविटी को या उस फ्रेगमेंट को हमें वापस जो डेट है, सेलेक्टेड डेटा वो रिटर्न करनी है जब भी यूज़र ओके के ऊपर क्लिक करेगा. सो व्हेन एवर यूज़र इज़ प्रेसिंग ऑन दिस पॉजिटिव बटन, तो हम ये जो डेट है जो सेलेक्ट हुई है हम वो रिटर्न कर देंगे. सो फ़िलहाल हम इस तरह से कर लेते हैं कि जो हमारा डेट पिकर है
उसका एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं एज अ प्राइवेट डेटा मेंबर. सो प्राइवेट डेट पिकर, और इसी डेट पिकर में हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू रीड द डेट, in fact the day. So mDatePicker dot get day of the month, in fact the month. So use that datepicker dot get month and the year. So हम ये पूरी डेट जो है अलग अलग इंटीजर्स की फॉर्म में इसको गेट कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा कोई फंक्शन मौजूद नहीं है जिसमें हम इसको एज अ होल जो है गेट कर सकें. और हमने चूँकि इसके क्लिक होने के ऊपर वापस एक डेट रिटर्न करनी है, तो हमें डेट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा यूजिंग दिस डे मंथ एंड ईयर वैल्यूज़. अब हम इन अलग अलग इंटीजर वैल्यूज़ से डेट बनाने के लिए कुछ इस तरह से करेंगे कि एक कैलेंडर क्लास का एक सब क्लास है विच इज़ अ कंक्रीट क्लास कॉल्ड एज ग्रेगोरियन कैलेंडर. मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. तो आई एम गोइंग टू पास द ईयर. इट हैज़ सेवरल कंस्ट्रक्टर्स जिसमें से एक ऐसा है जो कि ईयर मंथ और डे लेता है, और इसका गेट टाइम का मेथड कॉल करूँगा. सो गेट टाइम मेथड इज गोइंग टू रिटर्न मी द डेट. सो आई विल गेट द डेट. अब सवाल सिर्फ ये है कि डेट में वापस जो मेरी इस फ्रेगमेंट को क्रिएट करने वाला फ्रेगमेंट या एक्टिविटी है उसे वापस कैसे भेजूं. देखिए, जब हम एक्टिविटीज़ के साथ काम करते हैं तो हम लोग सेट रिज़ल्ट का मेथड का कॉल करते हैं, और होस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर जाके ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट का मेथड कॉल होता है. यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है. हम लोग इस वक्त एक फ्रेगमेंट में खड़े हैं एंड होपफुली इस फ्रेगमेंट को कॉल करने वाला भी एक फ्रेगमेंट ही होगा. तो कैसे हम ये काम कर सकते हैं. और हाँ, यहाँ पे सॉरी एक चीज़ और रहेगी. ये इस डेट पिकर को मैंने इनिशियलाइज़ करना था, पहले मैं इस मेथड के अंदर कर रहा था, बट वी डोंट हैव टू डू इट हेयर. सो ऑन क्रिएट डायलॉग के अंदर दैट डेट पिकर हैज़ टू बी इनिशियलाइज्ड. डेट पिकर में मैं इसको कास्ट कर देता हूँ एंड आई कैन यूज़ द फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड. सो मैं इसी व्यू में से इसको ढूंढ लेता हूँ जो कि अभी भी मैंने इन्फ्लेट किया है. सो पास दी आईडी डायलॉग अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर पिकर. सो हमें जो हमारा डेट पिकर वो मिल जाएगा. एक और चीज़ छोटी सी जो करनी होती है, जब हमारे पास डेट पिकर होता है तो इसको आपने इनिशियलाइज जो है वो ख़ुद से करना होता है बाय सम ऑलरेडी प्रोवाइडेड डेट. तो जो भी इस फ्रेगमेंट को क्रिएट करेगा वो साथ ही हमें न्यू इंस्टेंस का मेथड जब कॉल करेगा तो डेट जो है वो पास करेगा. सो हम इसी डेट को यूज़ करते हुए आई टेक दिस डेट आउट ऑफ द आर्गुमेंट्स बिकॉज ये तो इस फंक्शन का लोकल पैरामीटर है. सो मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू सेट द डेट यूजिंग द इनिट मेथड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग. और इसमें से मैंने ईयर मंथ एंड डे ऑफ मंथ जो है इसको पास करना है. सो इफ़ यू लुक एट दिस मेथड्स definition, तो it needs these three things and then also a listener which is a on date change listener. So हमें डेट चेंज के ऊपर कुछ नहीं करना, लेकिन जो है ईयर मंथ और डे जो है वो हमें इसको पास करने हैं. तो अब ये ईयर मंथ और डे पास करने के लिए हमें इस डेट को निकालना होगा पहले आर्ग्यूमेंट्स में से, और फिर उस डेट में से ईयर मंथ और डे अलग निकालने होंगे. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई विल पिक अप दिस डेट फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स. सो आई विल से गेट आर्ग्यूमेंट्स dot get serializable and I will pass the key. So जो arguments वाली की थी वो मैं इसको पास कर दूंगा. ठीक है जी. हाँ, मुझे इसको टाइपकास्ट करना होगा डेट में ताकि मुझे डेट जो है वो मिल जाए. अच्छा, अब इस डेट से डेट निकालने के लिए मैं कैलेंडर क्लास का इस्तेमाल करूँगा, और इसमें से मैं ईयर मंथ एंड डे इंटीजर की सूरत में निकाल लूँगा. उसकी वजह यह है कि यहाँ जो इनिट का फंक्शन है इसको मैंने ईयर मंथ एंड डे, सो इट सेज ईयर मंथ ऑफ ईयर एंड डे ऑफ मंथ. सो मुझे ये चीज़ें इसको पास करनी है. एंड लास्टली इसका ऑन डेट चेंज लिसनर है जो कि मुझे हैंडल नहीं करनी किसी किस्म का ऐसा कोई इवेंट, तो ये हो जाएगा. अच्छा, ये ईयर मंथ और डे क्योंकि अभी इनिशियलाइज नहीं है तो मुझे एक एरर आ रहा है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ द कैलेंडर क्लास, और कैलेंडर क्लास को यूज़ करने के लिए मुझे इस डेट से उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा. सो लेट्स क्रिएट अ सैम्पल ऑब्जेक्ट, एंड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट बिकॉज कैलेंडर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मैं इसका एक
गेट इंस्टेंस का मेथड जो है वो कॉल करूँगा, तो इट विल गिव मी द करंट और वन इंस्टेंस ऑफ द कैलेंडर, एंड देन आई एम गोइंग टू सेट द डेट फॉर दैट कैलेंडर विद माई डेट ऑब्जेक्ट। और अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं इस कैलेंडर में से ईज़िली अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकूँगा। सो आई कैन से कैलेंडर डॉट गेट एंड आई कैन पास द फील्ड। सो देयर आर वेरियस कॉन्स्टेंट फील्ड्स डिफाइंड in the same calendar class, so I'll use those calendar dot अभी हमें year चाहिए, so year. Similarly I can simply repeat this for rest of the scenarios जहाँ पे सिर्फ मुझे year की बजाय इस वक्त month चाहिए होगा, so month is here. And similarly I can use the calendar dot day of month field to get the day of the month. तो जनाब ये वाला कोड मेरा कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स में से डेट को निकाला, कैलेंडर एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें से ईयर मंथ और डे को निकाल लिया। इस ईयर मंथ और डे को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने डेट पिकर विजेट को इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो अब फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरा डेट पिकर विजेट सामने आएगा तो इट इज़ गोइंग टू बी लोडेड एंड इनिशियलाइज्ड विद द डेट जो कि उसको पास की जाएगी। और वो डेट पास करने के लिए जब मैं डेट पिकर फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो आई विल पास दैट डेट एट दैट टाइम। अब सवाल ये है कि डेट पिकर फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाया जाए, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस क्लास ऑलरेडी। सो इफ़ आई कम टू द क्राइम फ्रेगमेंट क्लास और इसके अंदर हम देखें जहाँ पे हमारा बटन का ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द बटन ऑब्जेक्ट जिसमें हम टेक्स्ट सेट कर रहे हैं और उसको इनेबल फॉल्स कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम इसका इनेबल फॉल्स वाली जो स्टेटमेंट है उसको कमेंट कर सकते हैं ताकि ये इनेबल रहे। और सेकेंडली जहाँ पे हम इसका ऑन चेंज लिसनर जो है सेट कर रहे थे, जिसमें हम लोग इसके अंदर हम कोई लिसनर सेट नहीं कर रहे फ़िलहाल, दिस इज़ फॉर द चेक बॉक्स। सेकेंडली हमें यहाँ पर इसी डेट बटन को ऑन क्लिक लिसनर जो है वो प्रोवाइड करना है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस न्यू ऑन क्लिक लिसनर एंड इस क्लिक के ऊपर मुझे वो फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो व्हाट शुड आई डू, आई शुड सिंपली से डेट पिकर फ्रेगमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो डेट पिकर फ्रेगमेंट मुझे एक डायलॉग मैसेज जो है वो बनाना है जिसके अंदर मैं डेट को सेलेक्ट कर सकूँगा। सो विच इज़ अ फ्रेगमेंट डायलॉग इनफैक्ट और डायलॉग फ्रेगमेंट। सो मुझे क्या करना है, उसी डेट पिकर फ्रेगमेंट का न्यू इंस्टेंस का मेथड कॉल करना है। सो आई एम गोइंग टू से डेट पिकर फ्रेगमेंट डॉट न्यू इंस्टेंस, और इस न्यू इंस्टेंस को मुझे डेट भी पास करनी होगी विच इज़ द करंट डेट। सो इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास जो करंट ऑब्जेक्ट है वो एम क्राइम के नाम से यहाँ पे इस फ्रेगमेंट में मौजूद है। सो मैं यहाँ से इसकी डेट लेके इसको पास कर दूँगा। सो क्या होगा इससे, इस डेट की हेल्प से मेरा जो डायलॉग है दैट्स गोइंग टू बी इनिशियलाइज्ड, और ये वो डेट है जो कि पास होगी और इससे मेरा डेट पिकर फ्रेगमेंट जो है वो क्या होगा जी, इनिशियलाइज हो जाएगा। अच्छा, सिंपली इसके बाद मुझे इस डायलॉग को शो कर देना होगा तो ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्क्रीन के ऊपर दिखाने से पहले एक छोटी सी चीज़ इसको और चाहिए। ये जो शो का मेथड है दैट इज़ आस्किंग अस कि हम इसको दो चीज़ें प्रोवाइड करें। वन इज़ कॉल्ड द फ्रेगमेंट मैनेजर एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड द स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग एक लेबल के तौर पे उसके साथ अटैच हो जाएगा। सो हम लोग फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट जो है वो हम ले सकते हैं, लेट्स गेट इट फ्रॉम द गेट सपोर्ट मैनेजर मेथड। सो गेट फ्रेगमेंट मैनेजर मेथड, और वो वाला मैनेजर का ऑब्जेक्ट हम इसको पास कर देंगे। और ये स्ट्रिंग पास करने के लिए हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देंगे डायलॉग अंडरस्कोर डेट के नाम से। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको ऊपर यहाँ पे ऐड कर देते हैं एज अ फाइनल वेरिएबल। सो इट इज़ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल और फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग अंडरस्कोर डेट, इसका नाम हम डायलॉग अंडरस्कोर डेट ही रख देते हैं। तो जी ये हमारा जो फ्रेगमेंट है ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक देखते हैं कि हमने कितना काम कर लिया एंड हाउ इज़ इट वर्किंग। सो लेट्स जस्ट रन दिस प्रोजेक्ट।
तो जी ये हमारी एक्टिविटी है जिसमें अगर मैं किसी एक क्राइम को सेलेक्ट करता हूँ जो कि जनवरी 7 को वाक़ई हुआ था, मैं क्लिक करता हूँ तो 7th ऑफ जनवरी लोड हो गई है, बिकॉज़ जो पिछले वाला फ्रेगमेंट था उसने यहाँ पर डेट को भेज दिया और वही डेट हमने इनिट को यूज़ करके, इस डेट पिकर फ्रेगमेंट के इनिट को यूज़ करके यहाँ पे होस्ट कर दिए, यहाँ डिस्प्ले कर दिया है। अब जैसे लेट्स सपोज मैं इसको 30 जनवरी करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो आई सी देयर इज़ नो चेंज हेयर, बिकॉज यहाँ पे आप जो मर्ज़ी डेट सेट कर दो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। वाई? बिकॉज यू आर नॉट सेंडिंग द डेटा बैक। अभी डेटा वापस कैसे भेजा जाए जी? देखिए, जब हम एक्टिविटीज़ के अंदर ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम बहुत आसानी से ये करते हैं कि स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट का मेथड कॉल करके और ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट के मेथड से डेटा को वापस ले लेते हैं, और जो चाइल्ड एक्टिविटी होती है वो इंटेंट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके डेटा को वापस भेजती है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिनेरियो होगा। ये जो हमारा डेट पिकर फ्रेगमेंट है, जब यूज़र ओके पे क्लिक करेगा तो इसको ये करना होगा कि एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इंटेंट के ऑब्जेक्ट को किसी एक स्पेसिफिक मेथड के अंदर डाल के और उस मेथड को कॉल करना होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जो हमें यहाँ क्राइम फ्रेगमेंट की तरफ से करना होगा वो ये है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं 1 और 2 या लेट्स सपोज चाइल्ड एंड पेरेंट, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और उसको एक्टिविटी मैनेजर जो है वो देख रहा होता है। वेयरएज़ फ्रेगमेंट्स के केसेस में ऐसा नहीं होता। हमें फ्रेगमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जिस तरह से चाइल्ड एंड पेरेंट का रिलेशनशिप या टारगेट एंड रूट का रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ के अंदर होता है, वो बनाने के लिए हमें यहाँ पे ख़ुद से एडिशनल कोड लिखना पड़ेगा। इनफैक्ट एक फंक्शन है जो कि कॉल करना होगा। सो जैसे ही मैं अपना डेट पिकर फ्रेगमेंट बना लेता हूँ विच इज़ नेम्ड एज डायलॉग, तो मैं उसका टारगेट सेट कर सकता हूँ विच इज़ द टारगेट फ्रेगमेंट। सो मैं कहूँगा कि जो मेरी करंट क्लास है विच इज़ द क्राइम फ्रेगमेंट, इसी को इसका टारगेट फ्रेगमेंट बना दो। सो आई एम गोइंग टू पास दिस। और दूसरी चीज़ जो है वो मुझे रिक्वेस्ट कोड की सूरत में पास करनी है। सो रिक्वेस्ट कोड के लिए मुझे ऊपर एक वेरिएबल जो है बनाना होगा जिसकी टाइप में एक फाइनल इंटीजर की सूरत में बना सकता हूँ। सो नेम इट एज रिक्वेस्ट अंडरस्कोर डेट और इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ विच इज़ 0। अब ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि यह एक ऐसा कांस्टेंट है बेसिकली जो मैं यहाँ पे पास कर दूँगा एज रिक्वेस्ट डेट, और यहाँ पर डॉट क्लास की बजाय हमें डॉट दिस लिखना। सो दिस इज़ इट जी। अब ये करने से ऐसा होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो कायम हो जाएगा। अच्छा, इस रिलेशनशिप के कायम होने से फ़ायदा ये होगा कि जब डेट पिकर का फ्रेगमेंट ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट का मेथड है वो ख़ुद से कॉल कर सकेगा, और जब वो कॉल करेगा तो वो एक्चुअली में क्राइम फ्रेगमेंट का ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट का मेथड जो है वो कॉल होगा। सो हम लोग यहाँ पर एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो इस इंटेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अपना जो डेटा है वो रखूँगा। So that intent object needs to have a data with the help of put extra method। और मुझे इस डेटा को नेम एंड वैल्यू की वैल्यू पेयर की सूरत में भेजना है। So what I need to put in is basically the state। ठीक है, so मैं यहाँ पे इसके लिए की बना दूँगा जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने क्रिएट कर दूँगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स्ट्रा डेट के नाम से, और जो वैल्यू मैंने पास करनी है दैट इज़ द डेट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। जब इंटेंट बन जाएगा तो मुझे क्या करना है, अब अपनी पेरेंट एक्टिविटी का या पेरेंट फ्रेगमेंट का या टारगेट फ्रेगमेंट का ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉल करना है, और टारगेट फ्रेगमेंट गेट करने के लिए मैं गेट टारगेट फ्रेगमेंट को कॉल कर सकता हूँ। सो आई विल से गेट टारगेट फ्रेगमेंट डॉट ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट। ये मेथड मैं बाय फोर्स खुद से कॉल कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स द रिक्वेस्ट कोड। सो रिक्वेस्ट कोड देने के लिए हम लोग इसको टारगेट का रिक्वेस्ट कोड दे देंगे, रिज़ल्ट कोड हम खुद से सेट कर देंगे एज एन ओके, और फिर उसका डेटा जो है उसको पास कर देंगे। सो आई विल से गेट टारगेट रिक्वेस्ट कोड। तो रिज़ल्ट कोड पास करने के लिए मैं एक्टिविटी क्लास का रिज़ल्ट ओके का कॉन्स्टेंट इसको पास कर देता हूँ, एंड देन इंटेंट का ऑब्जेक्ट इसको दे देता है। सो ये करने से ये होगा कि हमारा ये एक्स्ट्रा डेट के नाम से मुझे एक ऊपर स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट करना है। So name it as private final string type का constant which is named as extra date। और इसको just to make it unique because now it's going to go across the activity and or across the fragment, तो मैं इसके साथ अपने पैकेज का नाम जो concatenate करता हूँ।
हाँ, इसके 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 डेटा मेंबर को प्राइवेट की वजह पब्लिक रखेंगे बिकॉज इट नीड्स टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड दिस फ्रेगमेंट क्लास। अब हमें ये करना है कि हम इसको थोड़ा सा कुछ बेहतर बना लेते हैं। ये जो काम हमने यहाँ पे किया है हम इसको एक कस्टम मेथड के अंदर डाल सकते हैं विच इज़ प्राइवेट कस्टम मेथड। सो आई विल नेम इट एज सेंड रिज़ल्ट मेथड, और इस सेंड रिज़ल्ट के मेथड को मैं डेट पास कर दूँगा, ये जो डेट यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, और एक कांस्टेंट भी यहीं से पास कर देंगे, एक्टिविटी डॉट रिज़ल्ट हम इसको रोके। इस मेथड को हम ऑटो जनरेट करवा लेते हैं एज डेट पिकर फ्रेगमेंट क्लास का मेथड, और यहाँ से हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। सो ये जो इंटेंट वाला काम है ये यहाँ पे करना है, डेट हमें यहाँ से मिल जाएगी, और इसी तरह से जो रिज़ल्ट ओके है या रिज़ल्ट का स्टेटस है वो हम यहाँ से ले लेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर ऑल्सो वी आर नॉट ओनली क्रिएटिंग द इंडेंट ऑब्जेक्ट, बल्कि हम लोग साथ ही साथ टारगेट फ्रेगमेंट का ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का मेथड भी कॉल करें, और इससे होगा ये कि हमारे टारगेट फ्रेगमेंट को जो ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट है ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। अच्छा जी, अब अगला काम हमारा ये है कि क्योंकि सेंड रिज़ल्ट का मेथड कॉल तो हो गया है, हमें अपने क्राइम फ्रेगमेंट में आके जो वैल्यूज़ भेज रहे हैं इनको रीड करना है और अपने क्राइम लैब के ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करना है। सो क्राइम फ्रेगमेंट क्लास के अंदर हमारा ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट का मेथड है जो कि हमें चाहिए होगा, तो हम इस मेथड को बिल्कुल एट द एंड ऑफ द क्लास जो है वो ऐड कर लेते हैं। सो द मेथड इज़ टू बी इंसर्टेड और ओवररिडन बेसिकली। सो द मेथड नेम इज़ ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट एंड आई डोंट वांट टू कॉल द सुपर हेयर। सबसे पहले मुझे देखना है कि अगर मेरा रिज़ल्ट कोड ओके नहीं है, इफ़ माय रिज़ल्ट कोड इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्टिविटी डॉट रिज़ल्ट ओके, तो फिर आई सिंपली हैव टू रिटर्न फ्रॉम दिस पॉइंट, मुझे आगे कुछ नहीं करना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर मेरे पास ज़्यादा रिक्वेस्ट होती तो मैं स्विच लगा लेता, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है। सो इफ़ रिक्वेस्ट कोड इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू जो हमारा डेट पिकर फ्रेगमेंट है उसका एक्स्ट्रा डेट हमारे पास आई है, तो हमने इस डेट को रिसीव करना है और अपना जो रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट है उसे अपडेट करना है, बटन का जो टेक्स्ट है उसको अपडेट करना है। सो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। सो we'll simply call the respective methods on this data, intent data basically. So दरअसल हमें डेट मिलेगी, so I'm going to do it here। और इस डेटा में से ये जो डेटा या ये जो इंटेंट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है इसमें से मैं गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मैं अपनी की पास करूँगा। सो द की इज़ ऑलरेडी इन द डेट पिकर फ्रेगमेंट क्लास। सो मैं यहाँ से डेट पिकर फ्रेगमेंट डॉट एक्स्ट्रा डेट। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड आएगा, ये मैंने की पास कर दिए। द रिक्वेस्ट कोड इज़ द वन जो कि हमने रिक्वेस्ट करते हुए भेजा था। सो ये वो रिक्वेस्ट कोड है जो कि हमने रिक्वेस्ट करते हुए दिया था। सो टारगेट फ्रेगमेंट हमने सेट किया था और साथ ही साथ हमने उसका रिक्वेस्ट कोड भी हमने भेज दिया था। सो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली ऐसा ही करना है कि अपना रिक्वेस्ट कोड को इसके साथ मैच करेंगे। सो अगर हमारा जो रिक्वेस्ट कोड है वो डेट की रिक्वेस्ट वाला कोड है और उसके अगेंस्ट हमें कुछ डेटा मिला है, तो हम डेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने टेक्स्ट को सेट करेंगे। सो मैं अपने बटन को विच इज़ डेट बटन, उसके टेक्स्ट को सेट कर दूंगा और उसे अपडेट कर दूंगा बाय डूइंग व्हाट, बाय गेटिंग द डेट फ्रॉम द क्राइम ऑब्जेक्ट। सो mcrime डॉट गेट डेट डॉट टू स्ट्रिंग। और ये करने से पहले एक छोटा सा काम ये कर लेना चाहिए कि इस क्राइम की जो डेट है उसको हमें फिक्स कर देना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए। सो हमने क्राइम ऑब्जेक्ट की डेट को सेट कर दिया और उसके बाद अपने टेक्स्ट को, जो बटन का टेक्स्ट है, उसको भी अपडेट कर दिया। तो ये करने से हमें डेट वापस रिसीव भी हो गई और हमारे पास वो अपडेट भी हो गई। इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो जी, बिल्ड-लिनक्स इंस्टॉल जो है सक्सेसफुल हो गया। हम क्राइम नंबर 3 को ओपन करते हैं जिसकी डेट अभी 7 जनवरी है और इसको मैं
24th of January कर देता हूँ. So 24th of January is applied here. मैं वापस जा रहा हूँ just to make sure that 24th of January is updated in the crime lab as well. सो इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ. सो न्यू डेट इज़ सेलेक्टेड. सो जी हमने सक्सेसफुली यहाँ इस फ्रेगमेंट से अपनी डेट को पहले यहाँ पर भेजा और फिर डेट चेंज करने के बाद लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहीं पीछे पुराने किसी 2019 के साल जून में 4 तारीख को चले जाते हैं तो हमने यहाँ से डेट वापस अपने क्राइम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अपडेट कर दी एंड इस टेक्स्ट बटन के ऊपर या ये जो एक बटन है इसके टेक्स्ट के ऊपर भी सेट कर दी. Now if I go back, I see the date is updated. So that is it for now जी. I hope you have understood that. Please go and implement इसी level के ऊपर अपनी application को लेकर आएँ and make sure that you have learned how you can use the date picker widget. And thank you.